دیکھ رہے ہو دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے۔ مختار، میں عبداللہ عمر کا بیٹا، جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج ایک لادین اور ہوس باز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں۔ شیخ، آپ کی شخصیت نہ تو ہلکی تھی نہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج یہ ارادہ کیجیے، ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہیں مختار، نہیں۔ جو بے حرمتی ان حضرات نے خلفائے راشدین کے لباس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے۔ جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا، آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیث نوجوان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخشے کہ دین خدا کی جنہوں نے بے عزتی کی ہے۔ خدا کے دین کی آبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے، آخر صبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے، بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ، یہاں تک کہ یزید بھی آپ کی قدرت سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے، اس کا ثبوت میری آزادی۔ آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ مختار، میں اور صفیہ سالوں سے حکومت اور قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کی وسعت اہم نہیں ہوتی۔ فی الحال عبداللہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ ذرا گنو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے؟ عمر، عثمان، علی۔ صفیہ، تم نے حسین کو نہیں گنا؟ حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کے اوپر تھا۔ میں تو مختار پر حیران ہوں، ابھی خون حسین ابن علی خشک نہیں ہوا ہے۔ حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی، ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج کل عربوں کی غیرت ایک ادجلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھونکو اتنا ہی دھواں دے گی۔ شعلوں کے تو آثار ہی نہیں، اتنا دھواں دے گی کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال خود جناب ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک حال ہی میں ٹھیک ہوئی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو مختار؟ تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آیا ہوں، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جاؤ، یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ۔ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں، سو قرضہ چکانے آیا ہوں۔ قرض چکانا چاہتے ہو؟ بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو، اسے اس کی جانماز سے مت اٹھاؤ۔ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلو میں ہم اپنی آخرت بہت خوب میرے ہم سفر، سنو، میں کل صبح سورج نکلتے ہی نکل جاؤں گا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اپنا راز صرف تمہیں بتا رہا ہوں عمرہ، میں مکے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں تمہاری ہم سفر بن جاؤں گی۔ تم تو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہتے نا؟ تنہا نہیں ہوں، تم میرے دل میں ہو۔ کاش میں تمہارے ساتھ بھی چل سکتی۔ ایک بار شرط لگا لو تاکہ ضربی آنکھیں بند کر کے غیب کی باتیں کرے۔ مرد میدان ہو تو شرط لگاؤ۔ اپنی منزل کا نہ بتائے تو کیا؟ شرط ختم۔ منظور ہے، مگر اپنی آنکھیں اچھی طرح بند کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں پلٹ جاتا ہوں تاکہ تم مطمئن رہو۔ اس نے اپنا جوتا پہنا، آگے گیا
अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा। बानो उमरा से जुदा हुआ, दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा ज़रबी अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। ज़रबी, जी अबू इसाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता, तख्ता नहीं चाहिए? सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की सई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमी जमरा को बोझो कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमी जमरा रमी यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमी यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिदे इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खाने यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं।
पत्थर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खराबाजी है। क्या फरमाया? ये मुज़हका खेज है, मस्खराबाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालायन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा। तुमने अली और उसके चाहने वालों से ज्यादा सादा लोग देखा है? न देखा है और न ही देख सकता है। मैं उन तमाम इख्तलाफात के साथ जो कि मैं अली के मसलक से रखता हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि सादगी इराक में किसी जगह अबू तुराब के साथ सिपुर्द खाक हो गई। अली के सर को लोगों की सिर्फ जाहिरी आंखों ने पारा पारा किया है, ना कि शमशीर इब्न मुलजिम मुरादी ने। हुसैन को भी उन्हीं लोगों ने कत्ल किया जिनकी अक्ल उनकी आंखों पर थी। अब तुम और तुम जैसे लोग दयानत, अदालत और सादगी की बातें करते रहो। बनु उमैया सालों से अपने जलाल और जबरूत से मुसलमानों के सर पर जबरदस्ती हुकूमत कर रहे हैं। सब्ज महल की शान और शौकत, मस्जिद आजम सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसी मस्जिद बनाइए कि हैरत के मारे इंसान का मुंह खुला रह जाए। तो फिर क्यों ना हम मक्के को शाम के मुकाबले में ना उठाएं? हाँ? तो फिर आपको भी दिन की फिक्र नहीं है। तो फिर आले जुबैर और आले उमैया में क्या फर्क है जब एक ही रविश पर हुकूमत करनी है दोनों को? इस तरह तो आप और यजीद एक जैसी सोच रखते हैं, फिर उससे मुखालफत क्यों रखते हैं? मुझे 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 सिर्फ यजीद से सिर्फ शरीयत पर इख्तलाफ है मुसलमान। मैं उसकी सियासत पर कोई एतराज नहीं कर रहा, उसकी दियानत पर मुझे एतराज है। यजीद शराब पीता है, यजीद जुआ खेलता है, यजीद लोलाब करता है, यजीद कुत्तों से खेलता है, बंदरों से खेलता है, यजीद नमाज को हल्का समझता है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन का खून मुबाह है। अमीरुल मोमिनीन को झूठ और रियाकारी से मुबर्रा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मगर बहस भराए बहस मत करो मुख्तार। कितनी शरीयत जानते हो? उतनी जानता हूं कि अपने काम में मुकम्मल रसूख रख सकूं। बहुत खूब, शाबाश। तो फिर ये भी जानते होगे कि वो मसलियत आमेज झूठ और रियाकारी जो दीन की हिफाजत के लिए हो वो शरअन जायज है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार, ये शरीयत की बहस हमें हमारे मुश्तरक हदफ से रोक रही है। तुम यजीद के मुखालिफ हो, मैं भी हूं। तुम यजीद के खून के प्यासे हो, मैं भी हूं।
तुम हुसैन के खून का इंतकाम लेना चाहते हो, मैं भी लेना चाहता हूं। बात करके बहस खत्म करो। एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? इराक अरब